Assalamu alaikum and welcome to the lecture number 13, week number 13 in the course of discrete structures. So, today the topic that we are going to discuss is algorithm analysis. So, in algorithm analysis, mostly we are going to discuss some of the algorithms and we are going to analyze their efficiency. So, first of all, starting with the agenda for today's topic that we are going to concern, the main topics that we are going to discuss in this lecture, in this week, are quite a long and big topic. So, first of all, we are just going to define what an algorithm is, or simply what algorithms define themselves. Then we are going to start looking at the algorithmic performances. How do they perform in particular tasks? How do they perform in particular machines? As a computer scientist, we have to understand the concepts of algorithms, and we need to know how algorithms work. We have to compare the algorithms, and we should know how one algorithm is better than the other algorithm. Then we are going to start analyzing the algorithm. So the next topic will be analysis of algorithms. Then what are the general rules for the estimations, because we have to make some of the estimations and there are specific some of the rules that we use. And then we will move on to the growth rates and we will discuss how the growth rates work as we analyze the programs. After that, we will study the order of the algorithms. Then we will move on to the growth rate functions. And at the end, we will solve one example of an algorithm, analyzing that algorithm. So, because this is a big topic, long topic, so I am going to record two videos on the same topic. So in the first video, I will discuss the first 3 to 4 topics, maybe till the values of till the topic of general rule of estimation. And if time allows, I'll just go through the growth rates. If time does not allow, then I will make another recorded video where I will start again from the algorithm growth rate. So I am going to split this video into two parts. So I'm going to record two videos on the same topic. The topic is algorithm analysis, and it's a very important topic for all of you, for all of the students who are studying discrete structure, who are going to study the course of algorithms in the next semesters. And there are also some of the students that also study the discrete structure, sorry, data structures courses. So this is important for all of you. So formally, starting with the algorithms, we all know what algorithms are. So first of all, defining what algorithms are. जब भी हम algorithm की बात करेंगे, we will know in our mind that what algorithm is. Actually, we know algorithm is doing something step by step. So the procedure that is defined by doing something step by step and getting a result, getting an output is called an algorithm. अगर हम इसको नॉर्मल जिंदगी में भी बात करें, सो एल्गोरिदम मींस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म समथिंग, और उसको परफॉर्म करने के लिए आप जो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, उस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं वो एल्गोरिदम है. एल्गोरिदम इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, और साइंटिस्ट का नाम था एल्गोरिदम, जो कि आई थिंक 280 या 380 एडी में पाया जाता था, या ही वाज देयर. सो उसी तरह जैसे आपकी मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, हम सबको पता है अलजेब्रा क्या होता है. उसी तरह से एल्गोरिदम, अलजेब्रा में हम जो एक आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. सो एल्गोरिदम में भी आप उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. अब वो एल्गोरिदम स्पेसिफिकली हम जब भी डिस्कस करेंगे तो हम उसको कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे एल्गोरिदम के वर्ड्स को, बट ये नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कह सकता है कि चाय बनाने का
एल्गोरिदम क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। सो आप क्या करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सबसे पहले आप पानी गर्म करेंगे, सेकंड नंबर पे आप पत्ती डालेंगे, थर्ड नंबर पे आप उसके अंदर दूध डालेंगे, फोर्थ नंबर पे आप चीनी डालेंगे, शुगर डालेंगे, या वट एवर यू डिसाइड। सो दिस इज हाउ यू इलेबोरेट हाउ टू मेक टी। चाय बनाने के आपने स्टेप्स वाज़ेह कर दिए। सो ये चाय बनाने का एल्गोरिदम बन गया। सो द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस to perform some of the actions, to perform some output is called an algorithm. एल्गोरिदम की बहुत सारी डेफिनेशन हैं, डिफरेंट तरीके से इनको एल्गोरिदम को डिफाइन किया जाता है। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एक डेफिनेशन है। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सिमिलरली, there are some scientists who have given the idea of algorithm, and they have defined algorithm in different ways. For example, uh, step by step process for performing some task, similarly meaning the same thing that is written in front of you. So actually, what was the idea behind the idea behind producing algorithms? Why do we study? So idea was actually given by Ada Augusta, uh, countess of uh, Lovelace, and it was actually derived from the Charles Babbage idea of analytical engine or analytical machine. So this is where the history of actually algorithm starts. So basically, starting with the algorithm, because we are mostly computer science students, कंप्यूटर साइंसेज के अंदर हम जब एल्गोरिदम को डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली हम प्रोग्राम्स की बात करेंगे, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग द प्रोग्राम्स। और उन प्रोग्राम्स के अंदर जो बेसिकली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्जांपल we use data types, we use variables, we use simple statements, we use conditional statements, we use loops. So these all things that we use in our problem in our programs, high level programs, all the things are used also in algorithms, और वही algorithm फिर हम अपने प्रोग्राम में easybility के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक प्रॉब्लम है आपकी फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को फाइंड करने के एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन हैं आपके पास, एक से ज्यादा पॉसिबल तरीके हैं आपके पास। हमने दो तरीके पिछले लेक्चर्स में देखे हैं। फॉर एग्जांपल, वी कैन द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग लूप्स। वी कैन आल्सो फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। मसला ये है कि एल्गोरिदम, ये दो तरह के हमारे पास प्रॉब्लम प्रोग्राम्स आ गए। वी हैव टू वी हैव टू चेक दैट इन दोनों में से कौन सा प्रोग्राम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है, कौन सा प्रोग्राम ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, आउटपुट अच्छे दे सकता है, या जल्दी टाइमली काम कर सकता है, या हमारे कंप्यूटर की स्पेस को कम यूटिलाइज कर सकता है। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स इन अवर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम टॉपिक्स, कि हमारे पास एल्गोरिदम एक या एक से ज्यादा होते हैं। हम किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन से स्टेप्स यूज करने हैं, हमने कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, हमने कौन सा सोल्यूशन चूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल दूं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। वी ऑल हैव स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमने कौन सा सॉल्यूशन, हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। Either we go with the quadratic formula, either we choose the factorization method, or we go with the third process named as completing square method. हम इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस चूज करें तो हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाए, सही आ जाए, टाइमली आ जाए। तो ये सारी चीजें आपके एल्गोरिदम एनालिसिस के अंदर आती हैं। सो दूसरी चीज हमें क्या पता लगी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। हमने किस सोल्यूशन के ऊपर काम करना है, एज अ प्रोग्रामर्स, एज कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि हम जिस एल्गोरिदम के ऊपर काम कर रहे हैं वो उन
कौन सा एल्गोरिदम जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा और किस मशीन के लिए या किस जगह के लिए वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। सो एल्गोरिदम को भी अगेन प्रोग्रामिंग की तरह प्रोग्राम के अंदर ही एक्चुअल में उनको परफॉर्म किया जाता है। सो देयर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स, जैसे कि आप लोग डाटा स्ट्रक्चर्स वाले कोर्स में पढ़ रहे होंगे। सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सारे एल्गोरिदम्स आपने सॉर्टिंग के लिए पढ़े होंगे। फिर सर्चिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, लीनियर सर्च होती है, फिर मतलब सर्चिंग के कुछ एल्गोरिदम्स अब मेरे जहन में आ नहीं रहे। सो देर आर सम एल्गोरिदम्स यूज फॉर सर्चिंग पर्पसेस आल्सो। ट्रीज के एल्गोरिदम्स होते हैं, ग्राफ्स के एल्गोरिदम्स होते हैं। सो उन सब एल्गोरिदम्स को पढ़ के हम ये डिसाइड करते हैं एक्चुअल में, जब आप एल्गोरिदम्स के कोर्स में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि एल्गोरिदम्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, कंपैरिजन देखा जाता है कि हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में से ज्यादा बेहतर कौन सा एल्गोरिदम है, बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में से ज्यादा बेहतर कौन सा। सो आप कंपेयर करते हैं एल्गोरिदम्स। प्रोसेस क्या है, आपने सर्चिंग करनी है कौन सा प्रोसेस किस जगह पे ज्यादा सुटेबल बैठ सकता है। दिस इज व्हाट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम मींस। उसके लिए प्री रेक्विजिट क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं, हम चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखें, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें, सी में लिखें, सी प्लस प्लस में लिखें, जावा में लिखें, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखें, दे शुड बी करेक्ट। दे शुड ऑलवेज प्रोड्यूस सम ऑफ द बेसिक वैल्यूज, और आंसर जो है वो हमेशा हमारे पास सही आना चाहिए। हम चाहे सॉर्टिंग के लिए बबल सॉर्ट इस्तेमाल करें या हम मर्ज सॉर्ट इस्तेमाल करें, हमारा आंसर सही आना चाहिए। दैट व्हाट मीन्स मी मेक्स एल्गोरिदम मोर 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 वल्नरेबल। ठीक है, करेक्ट होने चाहिए आपके एल्गोरिदम्स, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको करेक्टली सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फॉर सॉर्टिंग, अगर आपने किसी एक एरे लिस्ट को सॉर्ट करना है, सो आपका एल्गोरिदम उस वक्त भी चलना चाहिए जब जो आपको लिस्ट दी गई है वो पहले से ही सॉर्ट हो। आपका एल्गोरिदम उस वक्त भी चलना चाहिए जब जो आपको लिस्ट दी गई है वो टोटली बिगड़ी हुई हालत में हो। और उस वक्त भी चलना चाहिए कि जब आपने एक एलिमेंट सर्च करना है और वो बिल्कुल लास्ट पे पड़ा हो और उसको सॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो। हर सूरत में बेस्ट केस भी होना चाहिए आपका, वर्स्ट केस भी होना चाहिए आपका, एवरेज केस भी होना चाहिए। तीनों केसेस को आपका एल्गोरिदम जो है वो हैंडल कर सके, वो एल्गोरिदम ज्यादा बेहतर होता है अगर वो करेक्ट आंसर प्रोड्यूस कर रहा है। अब बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो करेक्ट भी होते हैं। फिर हमने ये चेक करना है कि उन करेक्ट एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी क्या है। कौन सा एल्गोरिदम ऐसा है जो सबसे बेहतर काम कर सकता है, कम टाइम में काम कर सकता है, कम रिसोर्स यूटिलाइजेशन की मदद से काम कर सकता है, और फिर भी हमारा काम करेक्टनेस के साथ कर सकता है। सो दैट्स व्हाट कम्स अंडर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स। बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम में कौन कौन सी दो या तीन बेसिक मेन चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो वो दो एस्पेक्ट्स हैं। जब भी आप एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, सो एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस नॉर्मली दो मेन एस्पेक्ट्स की मदद से चेक की जाती है। नंबर वन इज टाइम एंड नंबर टू इज स्पेस। आपकी इंस्ट्रक्शंस कितना टाइम ले रही हैं एग्जीक्यूट करने में, एक इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेती है, अगर हम उनको इनपुट ज्यादा दे दें तब कितना टाइम लेती है, कितनी जल्दी वो काम प्रोड्यूस करके देती है, मेमोरी के साथ कितनी जल्दी इंटरेक्ट करती है और वेरिएबल्स को कैसे एलोकेशन करती है, ओवरऑल आपके प्रोग्राम का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोग्राम स्लो तो नहीं होता, रन टाइम कैसा रहता है। सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द वैल्यू ऑफ द टाइम। क्या आपका जो एल्गोरिदम है, आपका जो प्रोग्राम है, वो कितने टाइम के अंदर आपका आउटपुट कर रहा है और करेक्टली कर रहा है, सही है। फिर दूसरी चीज आती है स्पेस। एक तो टाइम की मदद से आपके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस चेक हो सकती है, दूसरी जो है वो आपके स्पेस की मदद से आपकी परफॉर्मेंस आपके एल्गोरिदम की चेक की जा सकती है। स्पेस में क्या आता है, नॉर्मली मेमोरी की यूटिलाइजेशन, यानी आपका एल्गोरिदम कितनी स्पेस ले रहा है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा है, बेहतर कौन सी चीज है, और रन टाइम पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तब क्या पड़ेगा,
स्टैक इस्तेमाल करते हैं तब क्या पड़ेगा। सो एवरीथिंग मैटर्स। आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, मेमोरी की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है, ये सारी स्पेस के हिसाब से कोई ज़्यादा स्पेस तो नहीं ले रहा, मेमोरीज को ज़्यादा अनएफिशिएंट तो नहीं बना रहा, अनयूजेबल तो नहीं बना रहा। तो ये चीज़ें आपकी एल्गोरिदम की स्पेस की परफॉर्मेंस को चेक करती हैं। सो बेसिकली जब भी आप किसी एल्गोरिदम को उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहेंगे, सो यू विल ऑलवेज फोकस ऑन टू थिंग्स, टाइम के ऊपर और उसकी स्पेस के ऊपर। हम इस कोर्स में बेसिकली सिर्फ स्पेस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम इस कोर्स में सिर्फ टाइम के ऊपर फोकस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ टाइम, हाउ टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एल्गोरिदम, के एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है, और अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो उस एल्गोरिदम को एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है, हाउ टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आप कोई सा भी एल्गोरिदम उठा के देख लें, हर एल्गोरिदम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर फिर हम उनको जज करते हैं, उनको चेक करते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं आपके प्रॉपर, ये वेरी कर सकती हैं। प्रॉपर्टीज में आपके एल्गोरिदम की इनपुट आ सकती हैं कि आप उसको क्या क्या इनपुट के तौर पर दे रहे हैं, आपके एल्गोरिदम की आउटपुट्स आ सकती हैं, फिर इसी तरह से आपकी एल्गोरिदम की करेक्टनेस आ सकती है, करेक्टनेस में आपकी प्रिसीजन आ सकती है, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेट वैल्यूज आनी चाहिए। अगर आप उसको इनपुट जो है वो डिफरेंट दें तो तब भी आपका आंसर एक्यूरेट आए, करेक्ट आए। आप इनपुट बड़ी दें तब भी आंसर करेक्ट आए, इनपुट छोटी दें तब भी आंसर करेक्ट आए। सिमिलरली फाइनाइटनेस होनी चाहिए। फाइनाइटनेस ये होती है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स या क्लोज नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर वो सारा काम उसको कर सके। फिर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि सम लिमिटेड टाइम के अंदर वो सही डिजायर्ड आउटपुट, करेक्ट आउटपुट जो है वो दे सके। फिर इसी तरह से इसके अलावा आप चेक जनरलिटी को चेक कर सकते हैं। सो जनरलिटी क्या होती है कि यू शुड वर्क फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द डिजायर्ड फॉर्म, के आप कोई भी प्रॉब्लम दें उसको, जनरली कोई सी भी प्रॉब्लम दें, अगर आप हीप सॉर्ट लगा रहे हैं तो उसको सॉर्टिंग वाली कोई सी भी दे दें तो वो उसको सॉर्ट कर सके। दिस इज व्हाट यू फोकस ऑन। अब किसी भी एल्गोरिदम के ऊपर फोकस करें, उसके अंदर ये 4 से 5 चीजें जो हैं वो होनी चाहिए कि उसके सर्टेन इनपुट्स होने चाहिए, उसको सर्टेन आउटपुट प्रोवाइड करने चाहिए, उसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, उसकी करेक्टनेस होनी चाहिए, उसकी प्रिसीजन होनी चाहिए, उसकी जनरलिटी होनी चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स मैटर इन द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम्स। ठीक है। तो जब हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की बात करते हैं तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एक्चुअल में टोटली एक कंप्यूटर साइंस का एरिया आ जाता है। ठीक है। अब इसमें हम जनरल चाय वगैरह की बात नहीं करेंगे, अब हम स्पेसिफिकली सिर्फ ये डोमेन ही सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बनती है। सो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट प्रोवाइड्स टूल्स टू एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस। आप जो सॉल्यूशन चूज करना चाहते हैं उनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है, सबसे एफिशिएंट कौन सा है, वो आपके एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर आता है। फिर क्योंकि हम टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं मोस्टली, तो टाइम के अंदर हाउ डू वी कंपेयर द टाइम एफिशिएंसी ऑफ टू एल्गोरिदम्स दैट सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी कि आपको फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए दो एल्गोरिदम्स हैं, दो प्रोग्राम्स हैं। आप चाहे तो लूप्स इस्तेमाल कर लें या फिर आप चाहे तो रिकर्जन इस्तेमाल कर लें। योर थिंग इज कि आपने इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, ज्यादा बेहतर तरीके से कौन सा काम कर रहा है। ठीक है। अब उसके लिए जो ऑपरेशन के लिए बेसिकली जो अप्रोचेज इस्तेमाल की जाती हैं उसमें से हम नाइव अप्रोच की बात करेंगे। नाइव अप्रोच क्या होती है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आप फैक्टोरियल को लूप की मदद से भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और आप फैक्टोरियल को रिकर्जन की मदद से भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आप पहले छोटी वैल्यूज के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं दोनों को, फिर बड़ी वैल्यूज के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप कंपेयर करते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है, स्पीड में कैसा फर्क पड़ रहा है, स्पेस में कैसा फर्क पड़ रहा है, और एफिशिएंसी कैसी आ रही है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसी हो रही है, रिस्पांस टाइम कैसा आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर आ जाती हैं। हाउ आर द एल्गोरिदम कोडेड? क्योंकि नाइव अप्रोच हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि हम उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।
और इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम कंपेयर करेंगे उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए। सो अब एल्गोरिदम्स को कोड कैसे किया जाता है? सिंपली जस्ट लाइक जैसे आप प्रोग्राम्स लिखते हैं उसी तरह से उनको कोड किया जाता है। बट हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम चेक करते हैं, पूरे प्रोग्राम की एफिशिएंसी चेक नहीं की जा सकती, इम्प्लीमेंटेशन की एफिशिएंसी चेक नहीं की जा सकती। वो क्यों नहीं की जा सकती? बिकॉज़ दे आर सेंसिटिव टू प्रोग्रामिंग स्टाइल। हर किसी इंसान का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। सो एल्गोरिदम एक बेसिक क्राइटेरिया या स्टेप्स या प्रोसीजर बता देता है, बट इम्प्लीमेंट आप उसको अपने तरीके से करते हैं। कोई जावा के अंदर कर रहा है तो वो हो सकता है डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस करे, कोई सी प्लस प्लस के अंदर कर रहा है तो वो सी प्लस प्लस के अंदर हो सकता है उसी एल्गोरिदम को डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस कर रहा हो या यूज कर रहा हो। सो वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। सो हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे और ऑल्सो हम एल्गोरिदम के ऊपर भी फोकस करेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंसी एल्गोरिदम का मेन फोकस होना चाहिए कि एल्गोरिदम में से कौन सी ज्यादा एफिशिएंसी हमें मिल रही है। फिर ये भी चीज आती है कि नई अप्रोच के अंदर ये चीज भी आ जाती है कि व्हाट कंप्यूटर शुड वी यूज। वी शुड कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम इंडिपेंडेंटली ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। हमने अपने प्रोग्राम के एल्गोरिदम्स को कंपेयर करना है, हमने ये कंपेयर नहीं करना कि वो एचपी के लैपटॉप पे सही चलेगा या डेल के लैपटॉप पे सही चलेगा या जो लैब्स के अंदर पीसीज हैं उनके अंदर सही चलेगा। तो हमने इंडिपेंडेंटली मशीन के इंडिपेंडेंट होके सोचना है, हमने जस्ट कंपेयर करना है एल्गोरिदम्स को कि अगर ये वाला एल्गोरिदम कंपैरेटिवली दूसरे एल्गोरिदम के साथ वर्क कर रहा है तो उनमें से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कैसे की जा सकती है। वी डू नॉट थिंक अबाउट द कंप्यूटर्स। फिर इसी तरह से हम ये व्हाट डाटा शुड द प्रोग्राम यूज ये भी अपने माइंड में रखते हैं। एनी एनालिसिस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक डाटा। हम चाहे तो उसको बाइनरी नंबर्स दे दें, हम चाहे तो उसको इंटीजर्स के ऊपर कंपैरिजन करना शुरू कर दें। हाँ, डाटा डिपेंड नहीं करता, उसकी वर्किंग डिपेंड करती है। आप उसको किस तरह का डाटा दे रहे हैं, वो ऑब्वियसली उस डाटा के हिसाब से ही परफॉर्मेंस करेगा। बट हमने परफॉर्मेंस उसकी जेनरैलिटी के हिसाब से देखनी है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर हम जो एक मेन प्रॉपर्टी है जेनरैलिटी की, एल्गोरिदम हर तरह के डाटा के ऊपर आपका काम करना चाहिए। तो हमने डाटा इंडिपेंडेंट होके भी अपने एल्गोरिदम्स को चेक करना होता है। जब हम प्रोग्राम्स को या एल्गोरिदम्स को एनालाइज कर लेते हैं, वो शुड एम्प्लॉय मैथमेटिकल टेक्निक्स। और हम इनको एनालाइज करने के लिए हमेशा मैथमेटिकली अलजेब्राइकली हम उसको सॉल्व करके देखते हैं और उसमें से एक जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं या कंप्यूटर्स हैं और डाटा है उनको निकाल के सिर्फ एल्गोरिदम की फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं और फिर हमारे पास जो आउटपुट आता है पर कंपैरिजन जो आता है फिर हम उसके ऊपर अपने एनालिसिस को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू एक्सेस इट्स एफिशिएंसी। हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस हैं उनको काउंट करना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली वी विल एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम यूजिंग ग्रोथ फंक्शंस। और फिर हम उसको ग्रोथ फंक्शन के हिसाब से कि अगर अब ये जो नंबर ऑफ सीक्वेंस हैं या जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये जब एग्जीक्यूट हो रही हैं तो ये किस किस प्रोसेस के हिसाब से चलेंगी। अब प्रोसेस कोई सा भी हो सकता है। और एल्गोरिदम की एफिशिएंसी की जब भी बात की जाए तो हमने कहा कि हम इस कोर्स में बेसिकली जो चीज चेक करेंगे वो होगी हमारी अ, हम फोकस करेंगे उसके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। सो टू एनालाइज एल्गोरिदम फर्स्ट वी स्टार्ट टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू एक्सेस इट्स एफिशिएंसी। जो सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस हम अपने एल्गोरिदम में परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको फोकस करेंगे। उसके बाद वी विल एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम यूजिंग ग्रोथ फंक्शंस के उसकी ग्रोथ किस तरीके से चल रही है। अब बेसिकली एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन टाइम को एक्चुअल में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हर स्टेटमेंट को एक छोटी सी कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटी सी स्टेटमेंट है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। हाउ मच टाइम दिस सिंगल स्टेटमेंट इज गोइंग टू टेक व्हेन इट इज गोइंग टू परफॉर्म, व्हेन इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका प्रोसेसर, आपका कंप्यूटर या आपका जो प्रोग्राम है वो कितना टाइम लेगा?
सो हम उसको एक कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं और वो कांस्टेंट कॉस्ट होती है, हम उसको सी के साथ एलोकेट करते हैं। सो इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। कोई सी भी आप एग्जीक्यूशन करें, एक स्टेटमेंट है, 100 स्टेटमेंट्स हैं, बट यूनिट टाइम एक स्टेटमेंट को हम कंसीडर करते हैं, तो एक स्टेटमेंट जो है वो एक अमाउंट ऑफ टाइम लेगी, बट वो कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस आ जाएं, अब जैसे कि सेकंड नीचे वाली एग्जांपल में अगर आप देखें, तो अब आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं। एक है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, उसकी कॉस्ट बन गई है, उसको आप मेंशन कर देंगे सी वन के साथ। इसी तरह एक दूसरी स्टेटमेंट है सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट, ये भी अपना एक सर्टेन टाइम लेगी, हम इसको मेंशन कर देंगे दूसरी कॉस्ट के साथ, लेट्स से कॉस्ट टू। अगर हमारे प्रोग्राम में सिर्फ यही दो स्टेटमेंट्स हैं, सो व्हाट विल बी द ओवरऑल आउटपुट? टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बनेगी? वी विल सिंपली ऐड ऑल द कॉस्ट। हमारे पास इस वक्त सिर्फ दो कॉस्ट थी, दो लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, दोनों अपना अपना कॉस्ट बियर कर रही थी, हमने दोनों कॉस्ट को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। सो दिस इज अ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट के हम जहां से एक्चुअल में अपनी एलोकेशंस करते हैं। सो आप एक स्टेटमेंट है उसको एक कॉस्ट एलोकेट करते हैं, आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, आप उनको दो कॉस्ट एलोकेट करते हैं, आपके पास 10 स्टेटमेंट्स हैं, अलहदा अलहदा अपना अपना काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लेंगी। हर एक को अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मेंशन करने के लिए हम कॉस्ट के साथ मेंशन करेंगे और वो कॉस्ट लास्ट पे ऐड कर देंगे। अगर 10 स्टेटमेंट्स हैं तो वो 10 कॉस्ट ले रही हैं और वो 10 की 10 कॉस्ट ऐड हो रही हैं, वो उस ओवरऑल एल्गोरिदम की टोटल कॉस्ट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हम सिंपल वेरिएबल्स को या फिर डेटा टाइप्स को या इन चीजों को फिलहाल सिंपल स्टेटमेंट्स को छोड़ दें, हम स्टार्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स की मदद से, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से। अगर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है विच इज सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और इसमें आपने लिखा हुआ है योर कोड इज ऑफ 4 लाइन्स। इसमें अपने फर्स्ट लाइन पे लिखा है इफ n इज लेस देन 0 then absolute value equals to minus n, else absolute value equals to n. So you have a simple, very simple code जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 0 से छोटी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस, यानी वो माइनस की वैल्यू बन जाएगी, और अगर बड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली n ही रहेगी एब्सोल्यूट वैल्यू। हमने क्या करना है, एनालिसिस से पहले ऑब्वियसली हमें पूरे कॉस्ट की पता होनी चाहिए। सो एग्जीक्यूशन टाइम हम इसका काउंट करेंगे, और एग्जीक्यूशन टाइम करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली वाली लाइन में एक छोटा सा कंपैरिजन हो रहा है। सो दैट कंपैरिजन इज गोइंग टू टेक वन कॉस्ट, वन टाइम, वन यूनिट टाइम। सो हमने उसको कॉस्ट वन के साथ मेंशन कर दिया। सिमिलरली कॉस्ट टू हमारे पास आ जाएगी, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस एन। इसमें क्या हो रहा है, एक छोटी सी वैल्यू माइनस एन के साथ एलोकेट हो रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू को एलोकेशन हो रही है। छोटा सा स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट भी अगेन अपना एक यूनिट टाइम लेगी वन, और हम इसको कॉस्ट टू के साथ मेंशन कर देंगे कि ये कॉस्ट नंबर 2 है इस प्रोग्राम के अंदर। एल्स ऑटोमेटिकली, अब इसमें इफ एल्स में हमें पता है क्या होता है कि अगर तो वो कंपैरिजन जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी, कंपैरिजन ट्रू हो जाए तो फर्स्ट वाली बॉडी चलेगी, अगर ट्रू ना हो तो फिर ऑब्वियसली सेकंड वाली बॉडी चल जाएगी। तो इसका मतलब एल्स वाले के ऊपर कोई स्पेशल काम नहीं हो रहा, तो हम उसको कॉस्ट के अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली उस कंपाइलर उसको नेक्स्ट वाली लोकेशन पे ले आएगा। नेक्स्ट वाली, अगर हम नेक्स्ट वाली के ऊपर आते हैं तो उसमें ऑब्वियसली अगेन एक नया काम हो रहा है कि n की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू को असाइन की जा रही है, तो उसको हम तीसरी कॉस्ट के साथ मेंशन कर देंगे, और वो भी अपना एक यूनिट टाइम वन का लेगी एग्जीक्यूट होने के लिए। अब जब हम इन चारों को इस पूरे कोड को ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम के हिसाब से मेंशन करना चाहेंगे, तो वो देखें वो क्या होगा। कॉस्ट वन जो है वो इंडिपेंडेंटली है, तो वो कॉस्ट वन प्लस कॉस्ट टू को ऐड करेंगे, कॉस्ट थ्री को ऐड करेंगे। कॉस्ट टू और कॉस्ट थ्री में से एक्चुअल में हम एक वैल्यू ऐड करेंगे, क्यों एक कॉस्ट को ऐड करेंगे, क्यों एक कॉस्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू फॉल्स होगी और एल्स वाले पार्ट में आएगी, और अगर लेस देन 0 है तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी, आपकी कंडीशन ट्रू होगी और वो ट्रू वाले पार्ट में जाएगी।
बॉडी एक एग्जीक्यूट होगी। जब एक बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब इन दोनों में से एक वक्त में एक स्टेटमेंट चलेगी। सो हमने सिर्फ वो वाली कॉस्ट पिक करनी है जो मैक्सिमम टाइम ले रही है। दो बॉडीज में से इफ एल्स में से एक बॉडी चलनी है, दोनों में से एक चलनी है, तो हमने ये देखना है कौन सी, अगर ट्रू वाला केस देते हैं तो ट्रू वाली बॉडी, तो क्या वो ट्रू वाला बॉडी जो है वो ज्यादा टाइम ले रही है। अगर हम फॉल्स वाला केस देते हैं एन की सूरत में, तो क्या फिर एल्स वाली बॉडी चलेगी, तो क्या वो वाला ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हमने मैक्सिमम ऑफ C2 एंड C3 चूज करना है, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। सही है। अगर हम सिंपल लूप की बात करें, अब सिंपल लूप की जब भी हम बात करेंगे तो उसका मतलब ये है, आप चाहे फॉर लूप ले लें, आप वाइल लूप ले लें, डू वाइल लूप ले लें। अब लूप का मतलब है कि एक चीज जो है वो आपने बार बार एग्जीक्यूट करनी है। सो आपके पास एक सिंगल पहली स्टेटमेंट है आई इक्वल्स टू वन, आपने एलोकेशन करनी है, उसकी एक कॉस्ट होगी, वन टाइम होगा, उसको हमने कॉस्ट वन के साथ C1 के साथ एलोकेट कर दिया। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट सम इक्वल्स टू जीरो, इसने एक बार ही एग्जीक्यूट होना है तो हमने इसको कॉस्ट टाइम वन दे दिया, क्योंकि इसने एक बार एग्जीक्यूट होना था तो हमने इसको C2 के साथ मेंशन कर दिया। C3 पे आके क्या हो रहा है, कॉस्ट नंबर 3 मेंशन करने के लिए जब हमने देखा तो एक लूप स्टार्ट हो रही है i लेस देन इक्वल टू n, यानी यहाँ पे एक काम, एक कंपैरिजन हो रहा है। पीछे जैसे इफ के अंदर हमने कंडीशन डाली थी, यहाँ पे जैसे हमने इफ के अंदर एक कंडीशन डाली, तो वो कंडीशन जो थी वो एक बार चल रही थी। यहाँ पे अब वाइल है, वाइल का मतलब एक लूप, लूप का मतलब उस चीज ने बार बार चेक होना है। अब जब ये बेसिकली हम सबको पता है कि जब हम कंपैरिजन के अंदर एक कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन जो है वो बार बार चेक होती है अनटिल के वो वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। और वो वैल्यू कब फॉल्स होगी, एन टाइम, क्योंकि हम एन के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, एन इज अ जनरल वर्ड, एन टाइम्स तो उसने कंपेयर होना ही होना है। लेकिन कंपैरिजन जो है वो एक ज्यादा बार चलता है। अगर आपने कंपेयर करना है, लेट से मैं अगर खैर नो प्रॉब्लम, मैं वैसे बता देता हूँ। अगर आपने लेट से एक लूप को 5 बार चलाना है, सही है, सो यू स्टार्ट फ्रॉम आई इक्वल्स टू जीरो एंड यू गो टिल आई लेस देन एन। सो फर्स्ट टाइम जीरो के साथ कंपेयर होगा, सेकंड टाइम वन के साथ कंपेयर होगा, थर्ड टाइम थ्री के साथ कंपेयर, टू के साथ कंपेयर होगा, फिर थ्री के साथ कंपेयर होगा, फिर फोर के साथ कंपेयर होगा, तो 5 बार वो चल जाएगी। उसकी कंडीशन को फॉल्स होने के लिए वो अगली बार दोबारा आके कंपेयर करेगा। सो ऑटोमेटिकली वो 6 के साथ कंपेयर करेगा, तो लेस देन 5 वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी। समझ रहे हैं बात को। सो एटलीस्ट एक बार ज्यादा कंपैरिजन होता है। आप कभी भी लूप के अंदर जो कंडीशन देते हैं वो हमेशा जो है वो एक ज्यादा बार लाके कंपैरिजन करता है। तो आप वाइल के अंदर या फॉर के अंदर कोई सी भी लूप जब स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल कंडीशन अगर आप लेट से आपने जीरो रखी है और आप उसको 5 तक लेके जाना चाहते हैं, दैट मीन्स 6 वैल्यूज, 0 1 2 3 4 5। सो आप i लेस देन इक्वल टू 5 रखेंगे। यू स्टार्टेड विद 0, i इक्वल्स टू 0, या इसी सूरत में आप देखेंगे कि i की वैल्यू है, हमने स्टार्ट की है 1 से, n को आप एज्यूम कर लें कि n की वैल्यू है 5। सो फर्स्ट टाइम i में क्या चलेगा, वाइल की कंडीशन में i 1 है, n भी 1 होगा। दूसरी बार i 2 होगा, n की वैल्यू 5 है तो 1 लेस देन 5 ट्रू। फिर i की वैल्यू इंक्रीज हुई, 2 हो गई, 2 लेस देन 5 ट्रू, फिर 3 लेस देन 5, फिर 4 लेस देन 5, फिर 5 लेस देन 5 इक्वल टू 5। यहाँ पे इक्वल टू 5 के साथ अभी भी ट्रू है। उसने i प्लस 1 किया, 6 होगी वैल्यू i की, और सम ऐड किया, सम प्लस i, फिर वो वापस ऊपर आएगा दोबारा, अब 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंपेयर करेगा। तो उसने, हमने उसको 1 से 5 तक जाने का कहा था, लेकिन उसने 6 के साथ भी कंपेयर लाजमी करना है। अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो अब हमारी लूप ब्रेक होगी। तो अब इसका मतलब, आप अगर आपकी एक लूप है जो कि एन टाइम आपने इनिशियलाइज करवाई है, तो वो कंपैरिजन जो है वो n प्लस वन टाइम चलने वाला है। सो दैट्स वाई हमने इसका जो टाइम काउंट किया है वो है n प्लस वन।
उसके अंदर जो काम हो रहा है बॉडी के अंदर वो ऑटोमेटिकली सिर्फ उतनी बार ही होगा। 1 से अगर 5 तक हम जा रहे हैं तो वो i +1 5 बार होगा, सम प्लस i अगेन 5 बार होगा, वो छठी बार नहीं होगा। तो इसलिए हम उसका जो टाइम काउंट कर रहे हैं वो एंड टाइम काउंट कर रहे हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर जब हम इसकी टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट में हम क्या करते हैं, सारी कॉस्ट को ऐड कर देते हैं। तो हमने कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2 प्लस कॉस्ट 3 प्लस कॉस्ट 4 5 सबको ऐड किया। जब हम कॉस्ट को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस n आ जाएगा। ठीक है। जब हम इन सब को ऐड करने के बाद वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। 3n+3 बनेगा आपके पास आंसर। सो अब उसमें से बेसिकली स्पेसिफिकली जो सबसे मेन टर्म है वो है n की। हमें n की वैल्यू का नहीं पता तो हम डिपेंडेंट है n के ऊपर, तो हम सिंपली इसको ये बोल देंगे कि प्रोपोर्शनली है n के, जितनी n होगी उतनी वैल्यू होगी। हम इसमें से कांस्टेंट्स की वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब एक छोटी सी वैल्यू है 3, 3 मतलब नथिंग। सो 3 को हम सिंपली निग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिकली एम फोकस जो है वो n के ऊपर है। सिमिलरली अगर आप हम नेस्टेड लूप की बात करें, अब नेस्टेड लूप में क्या हो रहा है, वही सारा काम उसी तरीके से चल रहा है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो 1 टाइम लेगी, सेकंड वाली स्टेटमेंट अगेन 1 टाइम लेगी, थर्ड वाली स्टेटमेंट व्हाइल लूप स्टार्ट हुई, कंपैरिजन हुआ। अब कंपैरिजन है तो ऑब्वियसली वो n+1 टाइम्स चलेगा, इसलिए वो हमने उसका टाइम n+1 लिख दिया कॉस्ट 3 का। कॉस्ट 4 अगेन n टाइम चलेगी क्योंकि वो फर्स्ट लूप के अंदर है। कॉस्ट 5 के ऊपर क्या होगा, अगेन कंपैरिजन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट 5 जो है वो n टाइम तो चल ही रही थी, इसके अंदर n+1 टाइम दोबारा से चलेगी, नेस्टिंग हो गई। सो n+1 टाइम वो दोबारा से चलेगी, तो हम उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो सम इक्वल टू सम प्लस आई और j इक्वल टू j+1 है, वो n टाइम तो ऑब्वियसली वाइल वाली लूप के साथ जो आउटर लूप थी उसके साथ थी, फिर n टाइम जो इनर वाली वाइल j वाली है उसके साथ भी है, तो फिर वो उसकी कॉस्ट उसका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली n मल्टीप्लाई बाय n के साथ काउंट होगा। और कॉस्ट 8 जो है वो भी अगेन n टाइम चलेगी क्योंकि वो आउटर लूप के अंदर है और इनर लूप के बाहर है। जब आप इन सारे टाइम्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज जो बनेगी वो n मल्टीप्लाई बाय n करने की वजह से n स्क्वायर की सूरत में आ जाएंगी। तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो मैक्सिमम n स्क्वायर वाली बन रही है। तो हम जब इन सारी कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा जो एल्गोरिथम का टाइम प्रोपोर्शनल आता है वो होता है n स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है जी। सो अब बाकी कांस्टेंट्स वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर दें, सिर्फ हम n स्क्वायर के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है। इसमें n भी आएगा लेकिन n जो है ऑटोमेटिकली अब n स्क्वायर से भी छोटा है, तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू भी इसके अंदर ही अकोमोडेट हो सकती है। सो जनरल रूल फॉर एस्टिमेशन क्या है, लूप्स के ऊपर आपको पता होना चाहिए द रनिंग टाइम ऑफ अ लूप इज एट मोस्ट द रनिंग टाइम ऑफ द स्टेटमेंट इनसाइड ऑफ द लूप टाइम्स द नंबर ऑफ आइटरेशन, यानी जितनी नंबर ऑफ आइटरेशन हो रही हैं उतनी नंबर ऑफ आपकी टाइम्स लगेंगे। नेस्टेड लूप्स, रनिंग टाइम ऑफ अ नेस्टेड लूप कंटेनिंग अ स्टेटमेंट इन द इनर मोस्ट लूप इज द रनिंग टाइम ऑफ स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ द साइज ऑफ द ऑल लूप्स, जिसकी अभी हमने एग्जांपल भी की है कि आप जो इनर लूप है, अब इसके अलावा जितनी मर्जी नेस्टिंग कर लें आप, 3 लूप्स इनर लूप ले जाएं, 4 ले जाएं, सो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होते रहेंगे उस लेवल तक। सो n मल्टीप्लाई बाय n, n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, अगर वो 3 इनर तक जा रही है, और n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n अगर वो 4 तक जा रही है, एंड सो ऑन मल्टीप्लिकेशन चलती रहेगी। कंसेक्टिव स्टेटमेंट्स वो सिंपली एक एक कॉस्ट लेंगी, जस्ट ऐड द रनिंग टाइम्स ऑफ दोस कंसेक्टिव स्टेटमेंट जो एक एक नॉर्मली अभी तक एक एक कॉस्ट ले रही थी। इफ एल्स की सूरत में नेवर मोर देन द रनिंग टाइम ऑफ द टेस्ट प्लस द लार्जर ऑफ रनिंग टाइम ऑफ S1 एंड S2, यानी आपके पास दो बॉडीज थी S1 और S2, जो भी उनमें से लार्जर होगी हम उसको काउंट करेंगे। सो दिस इज व्हाट एस्टिमेट फॉर द एल्गोरिदम के। अब बेसिकली तो 4 इसी तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिदम में। हम सिंपल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, सो वो अपना कांस्टेंट टाइम लेगी। इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें से जो भी हाईएस्ट वाली बॉडी होगी वो उसका कंपैरेटिव टाइम आ जाएगा। हम सिंपल लूप इस्तेमाल करते हैं तो उस लूप का n टाइम्स या जितने भी नंबर ऑफ इटरेशंस है उसके हिसाब से आ जाएगा। और नेस्टेड लूप की बात करते हैं तो वो n मल्टीप्लाई बाय n और इस हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से चलती रहेंगी। तो ये जो है ये बेसिकली 4 जनरल रूल हैं आपकी एडमिशन के, जब आपने इसको कंपैरिजन करना हो। ग्रोथ रेट्स, सो ग्रोथ रेट्स
जस्ट लेट मी चेक द टाइम। सो ग्रोथ रेट्स जो हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हमने पता लग गया है कि जब हमने वी हैव टू फाइंड द एग्जीक्यूशन टाइम, तो हम उसके एग्जीक्यूशन टाइम को मेंशन करने के लिए उसकी कॉस्ट निकालते हैं और उन सबको ऐड करते हैं। ऑब्वियसली जब हमारे पास बड़े एल्गोरिदम्स होंगे तो हम क्या करेंगे, या बहुत ज्यादा बार चल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, उस साइज के ऊपर उसको फोकस करेंगे कि जितना बड़ा साइज होगा प्रॉब्लम का उतनी बड़ी ऑब्वियसली आपकी आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी उसके हिसाब से वेरी करेगा। सो वी मेजर एन एल्गोरिथम्स टाइम रिक्वायरमेंट एज फंक्शन ऑफ द प्रॉब्लम साइज। सो प्रॉब्लम साइज डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट फॉर अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, नंबर ऑफ डिस्क फॉर अ टावर ऑफ एनोई। आपने कोई लिस्ट सॉर्ट करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर आप टावर ऑफ एनोई वाली प्रोग्राम कर रहे हैं तो अगर आप नंबर ऑफ डिस्क आपके पास बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। So for instance, we say that if the problem size is n, कंपैरिजन हम हमेशा एन के साथ करते हैं। तो अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है जो कि एन टाइम चलनी है, तो एल्गोरिदम ए रिक्वायर्स 5 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर टाइम, और जो दूसरी है इट टेक्स 7 मल्टीप्लाई बाय एन टाइम यूनिट्स। सो अब इन दोनों को हम मेंशन कैसे करेंगे, इसमें भी अगेन 5 और 7 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि एन स्क्वायर और एन जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम ए रिक्वायर्स द प्रोपोर्शनल टाइम टू एन स्क्वायर, और एल्गोरिदम बी जो है उसको इट टेक्स प्रोपोर्शनल टाइम टू एन। तो पहला एन स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा, दूसरा जो है वो एन के हिसाब से आ जाएगा, और इसकी ग्रोथ रेट अब क्या बनेगी, प्रोपोर्शनल टाइम जो होता है उस वो रिक्वायरमेंट होती है आपके ग्रोथ रेट बनाने के, एल्गोरिदम का ग्रोथ रेट बनाने के लिए। वी कैन कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ दो एल्गोरिदम बाय कंपेयरिंग द ग्रोथ रेट्स, और उसके हम ग्राफ की मदद से बताते हैं। अब बेसिकली ग्रोथ रेट ये चीज होती है कि आपका प्रोग्राम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कितनी जल्दी ग्रो करता है, या उसका टाइम कितनी जल्दी ग्रो करता है। अब देखने में देखें तो एल्गोरिदम बी जो था वो 5 मल्टीप्लाई बाय एन, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है एन इक्वल्स टू 1, सो आपका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ 5 सेकंड्स लेगा। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 सेकंड्स लेगा, अगर तीन है तो 15 लेगा। ये इसी हिसाब से चलता रहेगा, सही है। तो इसका ग्रोथ रेट अगर आपके पास 20 एलिमेंट है तो ये 100 सेकंड्स लेगा। इसका एक एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट चलता रहेगा, और उसको हमने मेंशन किया एक स्ट्रेट लाइन के साथ, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। लेट्स से, और जो दूसरा है एन स्क्वेयर वाला, उसको अगर आप एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड ले रहे हैं, तो एन स्क्वेयर अगर आपकी एन की वैल्यू 1 है तो पहले वो पहले वाले से नीचे ही रहेगा। एन की वैल्यू 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 5 बहुत कम टाइम लेगा। एन की वैल्यू 5 है तब भी बहुत कम वैल्यू लेगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 जस्ट 1 सेकंड लेगा। व्हाट हैपेंस के अगर आपकी एन की वैल्यू है 25, सो 25 पे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 25 करें तो आपके पास क्या बनता है, 125। और एल्गोरिदम ए जो है 25 डिवाइडेड बाय 5 अब भी सिर्फ 5 सेकंड्स लेगा। तो अ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अगर आपकी एन की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपने इनपुट के तौर पे दिए बहुत बड़े हो गए, तो ऑब्वियसली एन स्क्वायर जो है वो ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जस्ट टेक एन वैल्यू इक्वल्स टू 1000, अगर आपकी वैल्यू 1000 है तो फिर ऑब्वियसली 5 मल्टीप्लाई बाय एन 5000 टाइम लेगा। और 1000 का स्क्वायर हमें पता है कि 1 लाख होता है, 1 लाख को 5 के साथ डिवाइड भी कर दें तो वो उसके अंदर जो है वो कंपैरिजन नहीं आ सकता। सो दिस इज हाउ यू कीप ऑन गोइंग।
So coming back, I was just handling some issues here. सो ये ग्रोथ रेट की आपको बेसिक मैंने डेफिनेशन बताई है कि इस तरह से ग्रोथ रेट जो है ना, ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि वो ग्रो किस तरह से कर रहा है। बड़ी वैल्यूज के ऊपर ऑब्वियसली वो ज्यादा बड़े तरीके से ग्रो करेगा। कॉमन ग्रोथ रेट्स ये हैं, सी जो है वो कांस्टेंट है, लॉगरिथमिक होते हैं, लॉग स्क्वेयर्ड होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक और एक्सपोनेंशियल है। उसको मैंने सीक्वेंस वाइज रखा है, सबसे कम टाइम कांस्टेंट लेते हैं, लॉगरिथमिक जो है वो इससे ज्यादा टाइम लेते हैं, एंड सो ऑन। सो दीज आर बेसिक कॉमन ग्रोथ रेट्स जो कि हम एल्गोरिदम्स की टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आई विल एंड माय लेक्चर पार्ट 1 हियर, और इसके बाद फिर जो मैं लेक्चर पार्ट 2 है उसमें इसी तरह से रनिंग टाइम्स के हिसाब से और ग्रोथ रेट्स के हिसाब से ही शुरू करूंगा, और फिर हम आगे कंपैरिजन को फर्दर आगे लेके चलेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग सब टॉपिक्स हैं हमारे एल्गोरिदम वाले के उसको लेके चलेंगे। सो अंटिल नाउ आई होप दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको जस्ट गो थ्रू करें अच्छे तरीके से, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सो उसको राइट डाउन करें, वो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।